bills of exchange. Suppose A sold goods to B. A sold goods to B, and we have to pass journal entry in the books of A. So journal entries, JOURNAL, journal of A. ठीक है, means A is a seller here. A sold goods to B, and I say what will be the journal entry in the books of A. ठीक है, so A sold goods to B means B is the receiver, so B account debited. B account debited. ठीक है, to sales account. To sales account. ठीक है, रुपीज है सपोज 10,000. ठीक है, 10,000. 10,000. ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट A drew a bill on B. ठीक है ना, A drew a bill, ठीक है, on B for the same amount, and from this you have to decide, means the who is the A here and who is the B here. A sold goods to B and A drew a bill on B, means A is the drawer, DRAWER. So we pass journal entry in the books of A, means drawer, DRAWER, drawer. ठीक है, and drawer called to that A is a bill receivable. Bill receivable, and I already made explanation about the bills of exchange and bill receivable. Bill receivable, it is an asset of A. This is a asset of A. ठीक है, A drew a bill on B, means B accepted that bill which is drawn by A and returned to A. आई बात सच है, मतलब ऐसा हुआ ए ने जो बिल निकाला, ठीक है, बी ने उसको एक्सेप्ट किया और साइन करके ए को लौटा दिया. देन ए कैन से दिस इज अ बिल रिसेबल एंड बी से बिल्स पेबल. आई बात समझ है, मतलब बी इज द ड्रावी कॉल टू दैट बिल इज अ बिल्स पेबल. यह एक बात ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ आई वांट टू पास जर्नल एंट्री अबाउट ए ड्रीव अ बिल ऑन बी, मीन्स व्हाट हैपन हियर, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट for the same amount, means that is 10,000. ठीक है, and we have to pass narration, suppose acceptance received for bill, or suppose bill accepted by B. ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखना चाहता हूँ. ठीक है, after that what happen, means suppose think about that A drew a bill on B for 3 months. ये एक बात ध्यान में रखना, फॉर 3 months, मीन्स द ए विल गेट द अमाउंट आफ्टर 3 months. ठीक है, 3 महीने के बाद बी को पैसे मिलेंगे. बट नाउ ए इन नीड ऑफ मनी, बट ए कांट डिमांड द मनी ऑफ दैट बिल टू बी. सपोज ए रिक्वेस्टेड टू बी, ओ प्लीज गिव मी अ money of that bill receivable, but B say as per the signed document my liability means created for that business after 3 months. That's why, and that arrangement is known by A also, so A is not in a situation or position to make a request, because the another
way is available here. A discounted this bill with bank, ठीक है ना, with bank यह एक अरेंजमेंट है बैंक के साथ. A can discounted this bill with bank, ठीक है. So means the question raised in your mind, what is the meaning of bill discounting? It's a very simple. I say A drew a bill on B. B will get amount of that bill, but after 3 months, not now. But A is in need of money. So in this situation, A can discounted this bill with the bank. Means what happened here? So bank deducted some amount of that bill as a discount. ठीक है, मतलब क्या हुआ, 10,000 का आपका बिल था, बैंक डिडक्टेड फॉर 3 months डिस्काउंट, दैट इज सपोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू टेक अ लिटिल वन अमाउंट दैट इज 1,000. ठीक है, दिस इज द डिस्काउंट, यह एक डिस्काउंट है. मतलब क्या हुआ, ये डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक फॉर 9,000. आई वांट टू से फॉर 9,000. ठीक है, 9,000 के लिए उसने बिल का डिस्काउंटिंग किया. मीन्स व्हाट इंफॉर्मेशन यू गेट, बैंक डिडक्टेड 1,000 फ्रॉम दैट बिल अमाउंट. ठीक है, अब क्या हुआ, ए गेट्स 9,000. ठीक है, वो उसको पैसे मिल देगा और बैंक क्रेडिटेड दैट 9,000 ऑन एज अकाउंट. ठीक है, जो ऑलरेडी ए का अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए और होगा ही, ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, सो आई से व्हाट हैपन हियर इन बिल डिस्काउंटिंग, कैश कम्स इन माय बिजनेस. एक्चुअली कैश आ गया मेरे पास और दैट इज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन माय अकाउंट. सो आई वांट टू से बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, at the same time 1,000 deducted by bank means it is a expense, financial expense of A. So as per the nominal account, I say discount account debited. आई बात समझे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड एंड द बिल रिसीवेबल गोज आउट. वो चला गया, बाहर गया, कहां गया, बैंक के पास. दैट्स व्हाई बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड. आई बात समझे. ठीक है, क्या हुआ, समझ में आए होगा आपके कि बिल डिस्काउंटिंग, इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब ड्राइवर को पैसे की जरूरत है तो वह उस बिल का डिस्काउंटिंग बैंक के साथ कर सकता है और बैंक 3 महीने के रिलेशन में, 2 महीने के रिलेशन में कुछ डिडक्ट करेगा डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट ड्राइवर का एक्सपेंस हुआ. इसी वजह से, और अमाउंट मैंने आपको बोला था, अमाउंट यानी हार्ड कैश नहीं देगा, वह बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड क्योंकि एक्सपेंस है, और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्योंकि बिल रिसीवेबल आपको वह इंस्ट्रूमेंट बैंक को देना पड़ेगा. आई बात समझे. यानी अभी अमाउंट आएगा 9,000, देन 1,000 एंड 10,000. आई बात समझे. ठीक है, और आपने ध्यान में रखना है, नाउ द बिल, आई से सपोज वेयर इज द बिल, तो बिल बैंक के पास है. अभी आपके ए के पास नहीं है और बी के पास नहीं है, ध्यान में रखना. अब क्या हुआ, आफ्टर 3 months means I say that is the due date of that bill. On due date, bank presented this bill to B. ये बात ध्यान में रखना. यह जो बिल है बैंक के पास, बैंक क्या करेगा, 3 महीने के बाद उसके पास जाएगा. किसके पास, बी के पास. ठीक है, बी के पास उसने प्रेजेंट किया, बट बी डिसऑनर दैट बिल. इसका मतलब ऐसा हुआ कि बैंक को बी ने पैसे नहीं दिया. आई बात समझे. और बैंक कांट पुट द प्रेशर ऑन बी आल्सो. एक्चुअली बी इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी ऑफ बैंक. आई बात समझे. इसी वजह से बैंक रिटर्न टू हिज पैवेलियर एंड इन्फॉर्म टू ए. आई क्या बात समझे कि वाट एवर बिल डिस्काउंटेड बाई बैंक, इट इज डिसऑनर्ड बाय
बी, डिसऑनर कर दिया, बैंक को पैसे नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि बैंक रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम ए एंड ए रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम बी। ये बात ध्यान में रखना। आई बात समझे? मैंने क्या बताया आपको कि बिल का अभी क्या हुआ, डिसऑनर। बैंक गई थी बी के पास, लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए। आई बात समझे? बी ने पैसे नहीं दिया, मैंने बताया बैंक उसके ऊपर प्रेशर नहीं पुट कर सकता है, बैंक वापस चलाएगा और उसका इंफॉर्मेशन ए को दे देगा। आई बात समझे? इसी वजह से मैंने बोला कि बैंक ए से रिकवर करेगा और ए करेगा रिकवर बी से। आई बात समझे? ठीक है, इसी वजह से मैं एंट्री करूंगा बी अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझे? बी अकाउंट डेबिटेड, ये बात ध्यान में रखना, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मुझे बैंक को पैसे देना पड़ेगा इस वजह से, और बैंक मेरे अकाउंट से। आई क्या बात समझे? ठीक है, सीधी सीधी बैंक मतलब बात है। बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ए बी से लूंगा और बैंक को दे दूंगा। ठीक है, अब लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, बैंक इनकर्ड नोटिंग चार्जेस। आई बात समझे? बैंक इनकर्ड नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस सपोज 50 रुपीज। आई बात समझे? 50 रुपए बैंक को नोटिंग चार्ज आया था। अब ये नोटिंग चार्ज क्या है, अक्सर क्या होता है बिजनेस में, द ड्रावी हैव अ राइट, सपोज ड्रावी कैन डिसऑनर द बिल। In what situation bill it is dishonor due to non-availability of fund? Major problem if the dravee have no amount, ठीक है ना, उसके पास कैश नहीं है, that's why he want to dishonor that bill। और वाजिब बात है, उसमें कोई शंका नहीं है, जब उसके पास पैसे ही नहीं हैं तो ये भी क्या करेगा और कोर्ट भी क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मतलब ऐसा हुआ, ड्रावी ने सही में मतलब जो डिसऑनर किया था तो सही में उसके पास पैसे नहीं थे, इसी बेस पे उसने डिसऑनर किया या नहीं किया, यानी वो झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यह जानने के लिए यू कैन नोटेड योर बिल विथ नोटरी पब्लिक, रिसीवर के पास जाके, और you have to pay some miscellaneous expense, that is 20 rupees 50 rupees whatsoever he charge about that bill। आई क्या बात समझे? सपोज 50 रुपए उसने लगाए नोटिंग चार्जेस। नाउ इन दिस ट्रांजैक्शन द होल्डर ऑफ दैट बिल इज मतलब बैंक था, इसी वजह से नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। But actually noting charges, it is not a expense of bank and it is not a expense of A also, because these noting charges incurred to bank due to B। ठीक है, that's why B recovered that noting charges from A and A recover noting charges from that B। यह बात ध्यान में रखना। इसी वजह से आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा 10,050। आई बात समझे? 10,050, यह एक बात ध्यान में रखना नोटिंग चार्जेस के बारे में। और यह भी ध्यान में रखना कि ड्यू डेट के वक्त बिल जिसके पास रहेगा वह नोटिंग चार्जेस पेड करेगा। ठीक है, नोटिंग चार्जेस कब आएगा? जब आपको ऐसी जरूरत महसूस है कि भाई अपन ने नोटिंग करना चाहिए उस बिल का, उसी वक्त आपको पेड करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इट इज नॉट इनकर्ड एंड इट इज रिकवरेबल फ्रॉम ड्रावी एंड एक्चुअली इट इज एक्सपेंस ऑफ दैट ड्रावी, इट इज नॉट एक्सपेंस ऑफ होल्डर ऑफ बिल। यह बात ध्यान में रखना। आई बात समझे? अभी बिल का डिसऑनर हो गया है, यह बात ध्यान में रखना। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, हालांकि तो एग्जाम्पल मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूं और खुद ही जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट अरेंजमेंट 5,050, ठीक है ना, 5,050, ठीक है, पेड बाय बी, उसने 5,050 रुपए आपको दे दिया। फिर रहा रिमेनेंट अमाउंट दैट इज 5,000। ठीक है,
अ न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय बी फॉर द बैलेंस अमाउंट विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट, यह बात ध्यान में रखना, विथ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना, तो 500 सपोज, आई बात समझे, 500 रुपए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। एक मैं नया ट्रांजैक्शन बनाया अभी, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ आफ्टर डिसऑनरिंग ऑफ दैट बिल बी इज एग्री टू पे 5050 कैश, आई बात समझे, वह देने के लिए तैयार है। और दूसरा 5000 रुपए का नया बिल 500 रुपए इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, आई बात समझे। और दिस अरेंजमेंट एक्सेप्टेड बाय ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तो उसने एक्सेप्ट किया है। अभी देखो ख्याल में रखना, व्हाट हैपन हियर, बी पेड 5050 मींस कैश कम्स इन योर बिजनेस, उसने कैश दे दिया, ठीक है, कैश देने के बजाय वो चेक से पेमेंट करेगा। ये और एक बात ध्यान में रखना, दैट्स आई कैन से जस्ट लाइक कैश ऑब्लिक बैंक, आई बात समझे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू, ठीक है, हु पेड द कैश, बी, सो टू बी अकाउंट, बहुत ही आसान हो गया, 5000, ये देखिए 5000, आई बात समझे, ये हुआ 5000, सिंपल बात हुआ, कैश पेड बाय बी मीन्स कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। फिर मैंने यह बोला कि फॉर बैलेंस अमाउंट, जो बचा हुआ जो अमाउंट था उसके लिए एक नया बिल एक्सेप्ट किया विथ इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट मीन्स दिस इज एक्स्ट्रा चार्ज बाय ए, आई बात समझे, ए ने 500 रुपए इंटरेस्ट लगाया, दैट्स वाई इंटरेस्ट इट इज द इनकम ऑफ ए एंड इट इज रिसीवेबल फ्रॉम बी, ठीक है, बी के पास से आपको वह इंटरेस्ट लेना है, इसी वजह से मैं बोलूंगा अभी बी अकाउंट डेबिटेड, आई बात समझे, बी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये बात ध्यान में रखना, दैट इज 500, ठीक है। नरेशन लिखना भी रहा, आपको लिखना तो पड़ेगा ही, आप, मैं तो जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इसके पहले लिखा दिया है मैंने, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, आई बात समझे, या तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर 2 मंथ 3 मंथ, जो भी जो सपोज मैंने नया बिल बताया 2 मंथ्स का, इसका मतलब क्या हुआ, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन बी फॉर 2 मंथ्स, आई बात समझे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, उसने एक नया बिल एक्सेप्ट किया विथ इंटरेस्ट बताया, नाउ अगेन आई वांट टू से ए ड्रीव अ न्यू बिल ऑन बी, आई बात समझे, ए ड्रीव अ न्यू बिल ऑन बी विच इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए, सो अगेन आई वांट टू से दिस इज अ बिल रिसीवेबल, ठीक है, इसी वजह से बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, आई बात समझे, ठीक है, बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, बी अकाउंट, ठीक है। अब रहा अमाउंट, तो क्या करना पड़ेगा, 5500 5500 मीन्स न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय बी, या तो आप बोलेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर न्यू बिल विथ इंटरेस्ट, आई बात समझे, एक बात ध्यान में रखना। या तो फिर मैंने अभी क्या, आपको जल्द से जल्द अच्छे ढंग से समझने के लिए मैंने क्या किया, एक ही दिन के एक ही ट्रांजैक्शन का, ठीक है ना, अलग अलग एंट्री पास करवा दिया, कैश रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिल एक्सेप्टेड बाय बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। अभी ये 3 ही एंट्री जो मैंने अलग अलग समझाया आपको, तो आपको कंबाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो कैसा, देखो कैश अकाउंट डेबिटेड, आई बात समझे, कैश अकाउंट डेबिटेड, सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट है, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट चार्ज किया था, आई क्या बात, किसके ऊपर, बी के उस मतलब चार्ज किया, आई बात से, वो आपका इनकम था, इसी वजह से मैंने तो क्या किया कि एक्चुअली बी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट लिखा, और बी रिसीवेबल मतलब जो उसने एक्सेप्ट किया था वो विथ इंटरेस्ट था, इसी वजह से मैं लिखूंगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड,
आई बात समझे। और यह सब किसने एक्सेप्ट किया, बी ने। हो गया एंट्री आपका बी अकाउंट। कैश लिखूंगा मैं 5050 आई बात समझे, ठीक है। बिल रिसेबल था आपका 5500 और ये सब क्रेडिट कर दूंगा 10,550 हो गया कंबाइन एंट्री तीनों का। सिंपल बात है, ऐसे भी पास कर सकते हैं या तो ऐसे, क्योंकि समझने के हिसाब से मैंने उसके टुकड़े करवा दिए थे भाई। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, देन बी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, बी रिसेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। और सपोज यू कैन मीन्स पास कंपाउंड एंट्री भी बोल सकता हूँ मैं, तो कंबाइन भी बोल सकता हूँ। कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बी रिसेबल अकाउंट डेबिटेड और टू क्या, बी अकाउंट। नया बिल उसने एक्सेप्ट किया 10,500 रुपये का। यह बात आपने ख्याल में रखना है अभी, ठीक है। अब क्या हुआ बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हुआ, ठीक है। इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इंसॉल्वेंट किए हो गया, इसका मतलब ऐसा हुआ द बिल इज डिसऑनर। सिंपल बात ऐसा है कि बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। उसमें प्रॉब्लम में दिया रहा नहीं दिया रहा कि भाई बिल इट इज डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एक्सेट्रा। द बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ठीक है, इट मीन्स दैट एक्सेप्टेड बिल इज डिसऑनर। ये बात ध्यान में रखना कि बिल डिसऑनर हो गया। इसी वजह से मैं बिल को डिसऑनर की एंट्री पास करूंगा। और जाहिर सी बात है इस बिल का आपको पैसा नहीं मिला। आई बात है, किसने नहीं दिया, बी ने नहीं दिया। इसी वजह से बी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू बिल रिसेबल अकाउंट। सिंपल बात है, ठीक है। अमाउंट कितना था, 5,500। आई बात समझे, 5,500 बी अकाउंट डेबिटेड टू बी रिसेबल अकाउंट, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ न्यू बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। सिंपल बात हो गई, यह बिल डिसऑनर हुआ। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी 50% अमाउंट, ठीक है, 50% अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। ऐसा समझो ट्रांजैक्शन है। इंसॉल्वेंट हो गए एंड ए वांट 5,500 बट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ए गेट 50% अमाउंट ऑफ दैट, ठीक है। मतलब बैलेंस जो है बचा हुआ वह क्या हुआ, बैड डेट्स हो गए। वो नहीं बताया तो भी आपने एक्सेप्ट करना कि दैट इज बैड डेट्स। आई बात समझे, ठीक है। अब मैं एंट्री पास करता हूं 50% अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, मींस बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझे, ठीक है। उसके बाद 50% अमाउंट रिसीव्ड मीन्स 50% ट्रीटेड एज एन बैड डेट। वो बैड डेट हो गए, डूब गए वो ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एंड इट इज नॉट रिकवरेबल, ठीक है ना, बिकॉज बी सरेंडर हिज बिजनेस विद क्या, कोर्ट के सामने उसने सरेंडर किया। खुद ही चिल्लाया नहीं हुआ कि मैं इंसॉल्वेंट हुआ और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होता है, नहीं तो सारी दुनिया जानबूझ के इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, आई बात समझे, ठीक है। बैड डेट्स BADDEBTS, ये बात ध्यान में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, बी अकाउंट। ये बात ध्यान में रखना, बी अकाउंट। आई बात समझे, ठीक है। बैंक अकाउंट मतलब 50% अमाउंट मिल गया आपको, 50% यानी कितना हो जाएगा, ठीक है। आई क्या बात समझे, ठीक है। 2,750 मतलब 2,500 वह और इसमें के 250, 2,750। आई बात समझे, ठीक है। 50%।
अभी ये इधर लिखना चाहिए था मैंने 2750। आई बात समझे, बैड डेट भी उतना ही अमाउंट होगा 50%, और टू बी अकाउंट 5500। आई बात समझे। इसका मुझे अगर नरेशन लिखना रहा तो मैं ऐसे लिखूंगा, बीइंग 50% अमाउंट, आई क्या बात समझे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इज क्या स्टेट। बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। और अभी जैसा देखिए एंट्रीज जो है, आई क्या बात समझे, जो एंट्रीज है वह आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। एक्चुअली क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं इन रिलेशन टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वह आप खुद भी तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई किताब में प्रॉब्लम्स दिया है उसको ही करना है। और जो सेंटेंस होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल बात है, ये सोल्ड गुड्स टू बी ऐसा ही होना है, ठीक है। ये ड्रीव अ बिल, ठीक है, फॉर 3 मंथ 2 मंथ, डेट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये डिस्काउंटेड द बिल विथ इज बैंक, डिस्काउंट अलग अलग हो सकता है, अमाउंट अलग हो सकती है, ठीक है। बैंक प्रेजेंटेड द बिल बट द बिल इज डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। आई बस 50, 20, 40 ये भी हो सकता है। देन दिस मतलब ऐसा हुआ, डिसऑनर बिल हुआ था, और फिर मैंने यह जोड़ दिया यहाँ पे कि 50 मीन्स 5050, ठीक है ना, नोटिंग चार्जेस और 5000 रुपये बिल के उसने पेड करवा दिया। बाद में मैंने ऐसे बोला, न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय बी विथ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद बोला बी इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी 50% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इज क्या स्टेट, ठीक है। इतना सिंपल सरल है। और दूसरा ऐसा है कि इसका जो जर्नल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ क्या बी, ठीक है ना, यह मैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी अपलोड कर दूंगा। यह एक बात ध्यान में रखना। और ये बरोबर धीरे धीरे आपने जैसे जैसे मैंने एक एक ट्रांजैक्शन लिखा, एक एंट्री पास किया, एक ट्रांजैक्शन लिखा, फिर मैंने एक एंट्री पास किया, इसी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके बिल्कुल मतलब सामने खड़ा हूं और आपको एकदम आ रहा है समझ पे, ठीक है। और कोई समझो दिक्कत होंगी तो आप मतलब पूछ भी सकते हो मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंट्रीज पढ़ाऊंगा आपको इसी प्रॉब्लम के संबंधित इन द बुक्स ऑफ ड्रावी। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.